Hello. Yes. So let me show you how to reset the password. Now your current password will be given in the mail. Let me highlight it. You can copy paste here. Now I'll type my current password. Now we need to add here new password in the field of new password field. Now we need to save it. Okay. Now as you can see at the bottom in the red characters here, the message is being displayed as your changes have been saved. So you can change the password as I've shown you. We have also created the documents on our Wiki from which you can get the steps which I've showed you now. Here, the first link will be logging into quarantine console and second will be change password of the quarantine console. We'll make sure we'll send this link to you. So let's move on to our next thing, the dashboard. Now the dashboard consists of different statistics of our mail traffic. The mails that have been blocked, that have been passed, everything. So there are I beg your pardon, please hold on. Hello. Can everyone listen to me? You can type me on chat. Yes. Hello? 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 Am I audible? Yeah. Yes, yes. Sorry, let me continue, sir. So basically dashboard contains the statistical analysis. Hello? Please let me continue, sir. I request you to please mute the speaker phones at your end. Hello? Hello? Okay. So dashboard contains basic statistical analysis of the mail traffic, the mail that has been blocked, that has been passed, the size of the all the mails that has been passed and blocked, and the various threats detected. So as we can see on the screen, there are different options to see all these statistics, and the summary page contains a brief analysis of all these. We are going to go one by one on these graphs and statistics. So let's start with our first one, volume. As you can see here, volume contains a statistics of past and blocked mails, where the blocked mails are shown in the color of green, orange, and the past mails are shown in green. And the third type here, this type of graph has, shows the percentage of mails that has been blocked due to various reasons. They may be spam or anything. So as you can see here, we can give the time period, the date is mentioned here. We can give we can take we can get week wise analysis here. The as you can see, there are different dates for the week. Now if I select this particular week and refresh the query, I will get the statistics of this week, where day wise I got the statistics. Okay, so as you can see here, on 19th of the June, the for mithi.com domain, the mails has been sent and blocked and accepted between 5,000 to 6,000. And if we calculate that, the green shows accepted is 165 and blocked shows and orange shows blocked, that is 5,575. So this is basically the statistics of blocked and passed mails. Now the next thing is bandwidth.
Now here bandwidth is nothing but the total size of mails that has been blocked and passed. And as we did in volume, we can give it a time period, and according to that the statistics will be displayed. Now here I can give week, select the first week and refresh the query. Okay, now as the second query of 20th June, the orange one is showing quarantine, that means blocked mails due to various reasons, and the green one is showing the mails that has passed without any interruption. Now the figure 87633 has shows, yes, the figure 87633 is showing the total size of the mails in KBs which has passed to your domain on this particular day. And the figure 9572 is showing the total figure of the size of the mails that has been quarantined, blocked due to various reasons. Well, let's move to our next thing, threads. Now here this basically contains a pie chart of blocked mails and the reasons behind the blocked mails and the past mails, everything. Now as you can see here, there is a big pie chart, and if you try to roam the cursor around it, you will get details. Now it's saying that blocked mails, the orange color is for blocked mails, and it's saying that 16,104 mails are blocked, and at the bottom the details are also given color wise. Orange one is for blocked and the figures are given. Now there are different things because of which the mails could be blocked: ransomware, virus or spam or anything. In this section also we can give it a period, and we can get the mail traffic for that period. Now here I refresh the query by selecting the this particular week, and I will get it. So when I try to roam the cursor around the orange portion, I get the message that the block number of block mails are 22150, and in the green one is for clean, and this contains basically the other mails that may be spam or ransomware or virus or many different things. Now let's move to thread details. Now here, as you can see, there are many differences due to which the mails could be blocked. It could be blocked because of ransomware, virus, as I've already told. So Trend Micro basically has these tests: analyze advanced threats, probable advanced threats, and it's trying, and it's showing number of mails which are blocked and which are blocked and why. Okay, so you can see the pie chart here, and if you want statistics, you just need to go down and you will get the detailed in tabular format. So when we try to see the mail traffic of 3rd July, you can see the blocked percentage for mails is 93.99 and the total mails is 2391. The ransomware is 0, virus is 0, analyzed advanced threats are 0, probable advanced threats are 0, spam are 66 and clean are 87, and finally you will get the total figure. In this section also you can give it a particular time period for which you want the traffic, and you can just select it here and you need to refresh the query. Okay, now the next section is very important: ransomware. As we have been listening about ransomware, so basically it's a threat. You get a mail with an attachment, and when you try to open the attachment, all the data in the machine from where you are accessing your email ID gets encrypted, and gets encrypted in a way that you cannot decrypt it at all. So basically when you open this mail and the ransomware when the ransomware spreads on your PC, your data will be lost. And Trend Micro has been claiming that he can stop, and as we observe, he's been protecting the mails from ransomware. So there are different tests a mail goes through in Trend Micro, and the tests are given: web reputation, virus scanning, advanced analysis, spam protection. So basically in this section you will get to know in which test the ransomware has got detected and it was got blocked. Now as we can see, a particular traffic for
4th July 2016. The ransomwares were detected 5 in virus scanning and stopped, and in spam protection detected 2 and stopped. So total number of ransomware were stopped are 7. So our next thing is advanced analysis details. So basically this is a test. A mail has to pass through this test before it gets delivered to your domain, in which different types of threats are mail is scanned for, and if detected they are shown here. Now there is no particular entry currently available because there are no mails of this type of threats has sent to mithi.com, but here you can get the idea. As you can see my cursor here, the mails with the threats of high risk are denoted by orange color, with medium risk yellow color, and different colors as you can see. And you can get a pie chart here, and the detailed tabular statistics are shown here. So let's move on to our next, top spam. Let's move on to next, top spam. So here basically you will get the top recipients who has received high number of spams. Now as you can see here, we can select a particular period and refresh the query, and we will get the statistics for that particular period. Now in this particular period, tarun@mithi.com, this email ID has uh, uh, has sent 117. I mean the 117 spam mails has sent to this ID, but Trend Micro has blocked them. So you will get basically the figure top 10 spam receivers, but which were blocked by Trend Micro. Now just like that, there is a top virus section also, where you can see the top recipients who were to whom the virus mails were sent but blocked by Trend Micro. Now the next is top analyze advanced threats. Now as I explained you earlier in this particular tab, advanced analysis details, here different types of threats are detected with category of high risk, medium risk, and the number of recipients, the top recipients to receive these kind of threats are shown here. Now since there are no mails to mithi.com with these type of threats, so these statistics are not displayed here. So this is basically our dashboard. So all the things we discussed here, volume, bandwidth, threats, are briefly shown in here on the summary page. So you can get all the statistics here. So let's move on to our next, quarantine. Before that we will go to log. So we will show you how to trace the log. Here the mail tracking tab is given. So as you can see, there is a column of period. You can mention the period of which you want to trace the log. Here you can give the time period. So basically what Trend Micro does is keeps the logs for last 30 days. So as you can see here, the highlighted date, last highlighted date is 8th June. So before that you cannot go. That means the logs are available from the of the last 30 days only. So I can select a particular date, say 1 July, and to date is 7 July, and I can give the recipient and search. Okay, so there are currently no mails available for this period. So let me just increase the period.
So as you can see here, I'm trying to watch the mail traffic of whole Mithi domain. So what I basically did is put the star on the username. So that means that I want to see the logs of all the users. It's basically searching the query. It will show all the mails that has been received to mithi.com domain. Now as you can see here, there are logs given. Searching is quite similar to Pinap. You just need to add the recipient name and if you know the sender name and subject. Now the logs are given with timestamp, sender, recipient and what is done with that mail by Train Micro. Now this AD for this particular email entry, Train Micro has quarantined the mail and the subject and the sender IP address and the size of mail is given. So this is how you can search a particular query. Now here you can, if you want to see only blocked mails, you need to click here. Now as you can see here, these all the mails are blocked and the reason of block is also given. Now this is how to track or how to trace a particular log entry for a mail. Now we have updated a document about it in our wiki. So if you want to access it from there, you can access it. I open this link and I'll get the steps. So all the steps to trace a mail in logs are given here. So next go to policy events. So as it given on top, there are different policies of Trend Micro, ransomware and advanced persistent threat. So basically, if you want to see if any mail was blocked because it got detected as ransomware, all you need to do is select in ransomware here, give the time period and you need to give the recipient and sender name. Trend Micro keeps the logs for 30 days, but as we know from them, you can check the logs for 7 days at a time. It stores a log of 30 days, but you can check the log for 7 days at a time. So this is the policy ransomware. So if mail is got detected by ransomware and if you want to know, if you want to trace it, just select the policy here, ransomware, enter the recipient name and hit the search. Second policy is advanced persistent threat. In that there are two options, analyze advanced threats and probable. So as I told you earlier, this is the Trend Micro property through which mail goes before it gets delivered to domain. So if you want to see if a mail got blocked by this particular mail property, you can click here, analyze advanced threats, enter a recipient name and hit the search. Now the next is audit log. Now here you can get the logs. You will be given every IT admin will be given an account. So his account name will be displayed here. Now currently I'm logged in as Bhartish, so I'll select Bhartish and you will have options here. What kind of logs you want? So end user, actions, quarantine, you can select that, you can search and export it as CSV. Okay, so let's move to our quarantine. Now the mails which got quarantined, let me show you how to export a policy here. Now these are two logs that are that has detected in the end user actions. So as you can see here, the status is inclined quarantine release and add approved sender. That means the mail got blocked from quarantine, it has released and it has whitelisted. So if I want these logs, I need to click here and export it as CSV.
and as you can see, the CSV got downloaded here. When I open it, yes, you will get the timestamp, user, all these things which are displayed on the console will be get in the format of CSV. Now the next is quarantine. Say your mail got blocked, and if you want to check it and release it, the way to go is quarantine. Now let's go to query section. Now here, as you can see, you can give the particular date. Let me give you 1 July to 7 July incoming and the particular ID. And let me search. So here I've got two mails from a particular sender and that got quarantined because they were detected as spam. So if I want to release it, all I need to do is select and click on deliver. So when I hit that, the mail have got delivered. If you want to check, see, I just got the mail. Okay, so this is how you query a mail and release it from quarantine. And the document for this is also uploaded on our wiki. Here is the link. When I open it, I will get all the steps. So these all documents are available on wiki. There is another section, digest setting, but this is a developer's tool, so we won't be needing it for monitoring purpose. And actually, I will request you not to touch that because it could really change the settings of incoming mails. And our last option is administration. Now, as I already shown you, the admin password through which we can change the password of our particular admin ID. Okay, and the next is end user managed accounts. Now, but what we are doing in Trend Micro is we are not adding the end users. We are just adding the domains. So there won't be any end user accounts. So this tab won't be needed. And our last section is service level agreement, SLA. You can select the language and download it, and according to if you want, you can read it. Okay, so this was a brief introduction to Trend Micro. So if you have any questions, you can ask me. Hello. Hello. So if you have any questions, you can ask me now. Answering to Krishna sir's query, Krishna sir has asked, so no more need for Pine-App Mail Secure now. Yes sir, we have shifted from Pine-App to Trend Micro now, and there is no need to access Pine-App from now on. And go live for Trend Micro will take place on tomorrow. It will take place tomorrow. So from Monday, you don't need to access Pine-App. You can monitor your incoming mails from Trend Micro. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Hello. Yes sir. I can hear you. ये सारे जो मेल 90% मेल अगर ब्लॉक हो गए तो रिलीज कितने मेल होंगे? नहीं sir, 99%. Hello. Yes. Let me confirm on that. So 99.999 spam mails will be blocked. That means Trend Micro ये गारंटी देता है कि अगर कोई स्पैमर आपको मेल सेंड कर रहा है तो 99.999% स्पैम मेल्स आपके ब्लॉक होंगे. ये उसकी गारंटी है. हाँ, ये उसकी गारंटी देता है. आपके जो वैलिड मेल्स है उसमें अगर सपोज नेटवर्क से कोई वायरस आता है तो क्लीन करता है कि नहीं करता है? यस सर, वो वायरस और स्पैम मेल की गारंटी देता है सर. वो क्लीन करके नीचे पुश करता है डोमेन पे.
यस यस यस, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने अभी रैंसमवेयर का नाम तो सुना होगा जो स्प्रेड हो रहा है। तो हमने mithi.com पे अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं ट्रेन माइक्रो को, और हमने एज उसको जैसे उसको हमने एक्सपीरियंस किया है कि रैंसमवेयर को भी डिटेक्ट कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है, और उसको टैग दे रहा है कि ये वायरस है जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया है। तो ये कितने जिप जो है आपका, आपने कंप्रेस मोड जो है, कंप्रेस जो जिप फाइल्स है उनका भी उन्होंने आपने ब्लॉक किया है रैंसमवेयर की वजह से। कितना लेवल तक डीप इंस्पेक्शन करता है? कितना लेवल तक डीप इंस्पेक्शन रहता है उसका? हाँ, अगर कोई जिप फाइल अटैच करके भेज रहा है हाँ हाँ और आप उस पर सस्पिशियस है कि वो रैंसमवेयर हो सकता है, हाँ हाँ तो कितना लेवल तक डीप इंस्पेक्शन होता है इसका? हाँ, उसका अटैचमेंट चेक होगा सर, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मुझे जैसे रैंसमवेयर आया था, हम लोगों को रैंसमवेयर, एक कस्टमर को रैंसमवेयर आया था, उन्होंने वो मेल एज अ अटैचमेंट हमें भेजा था सपोर्ट को। तो एक्चुअली उस अटैचमेंट में जो .eml फाइल थी उसके अंदर एक अटैचमेंट था जिसके अंदर रैंसमवेयर था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका लेवल ऑफ चेकिंग बहुत डीप है। और आपके प्रीवियस क्वेरी का मैं आंसर करना चाहता हूँ। जो मेल एज अ वायरस डिटेक्ट हुए हैं वो ब्लॉक होते हैं, वो क्लीन होके डिलीवर नहीं होंगे, वो टोटली ब्लॉक हो जाएंगे। हेलो हेलो राजेश। रिलीज हेलो हेलो हाँ राजेश। यस यस हेलो यस सर, यस सर, मे आई नो? हेलो हाँ राजेश, अशोक बोल रहा हूँ। अशोक सर, यस। मेरा ये पूछना था, जैसे कि हम लोगों ने अभी पाइनएप में काफी मेल्स को ब्लैकलिस्टेड कर रखा हुआ था, हाँ हाँ है ना, और कुछ हम लोगों ने उसको यानी सेटिंग जो ऑलरेडी हम लोगों ने डोमेन के रेस्ट्रिक्शंस को लेकर और जो अलाउ करने थे उनको जो अलाउ करके रखे हैं, तो क्या ये सेटिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे कि मैं आपके नए वाले में ट्रेड माइक्रो के साथ में कि हमको फिर से करने पड़ेंगे? भारती जी अशोक भारती जी, करना है तो हेलो भारती जी, अशोक जी का जो अभी क्वेश्चन है सर। हेलो भारती जी, एक सेकंड सर, सर प्लीज एक मिनट, मैं अशोक सर का एक बार आंसर दे देता हूँ, ठीक है? वो नहीं उस पे ही मेरा क्वेश्चन था कि अशोक जी ने बोला है। हाँ, एक मिनट, हाँ अशोक सर आप बोलिए बोलिए। ये भी एक सवाल था कि जैसे कि हम लोग पाइनएप में डोमेन को व्हाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट करने की जो प्रोविजन था, यस यस, तो वो हम पे इसमें इसमें किस तरीके से कर पाएंगे? इसमें कैसे तरीके से कर पाएंगे व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट? हेलो भारती जी, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, क्या धनंजय है। एक्चुअली अभी पाइनएप में जो हम लोगों ने डोमेन व्हाइट लिस्ट किया है, यस यस, 100 के ऊपर डोमेन व्हाइट लिस्ट किए हुए हैं। ओके, तो ये वापस यहाँ पे व्हाइट लिस्ट करने पड़ेंगे क्या? यस यस, मैं अभी उसको आंसर कर देता हूँ। हाँ, मैं अभी उसको आंसर कर देता हूँ। हाँ क्योंकि क्या हुआ हाँ हेलो, हाँ यस सर, मैं अशोक सर और अभी उनका और अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनका आंसर दे देता हूँ। हेलो 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 यस, हाँ सर, मुझे एक सवाल पूछना था। हेलो हाँ सर, एक मिनट, मैं इनका अभी एक आंसर देता हूँ, आप क्वेश्चन पूछिए। सेम इस पे जैसे पाइनएप में डेली मॉर्निंग में एक मेल जाता था सारे यूजर्स को, यस यस, ये यूजर्स को ब्लॉक करना है या क्या करना है, सिमिलर वैसे ही मेल मिलेगा कोई या फिर कैसे रहेगा? नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। पहले मैं इनको व्हाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट का बता देता हूँ और उसका भी आंसर दे देता हूँ, ठीक है सर? अभी तो पाइनएप से हम कोई व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेन माइक्रो को टेस्ट किया है, और जहां तक हमारा खुद एक्सपीरियंस है तो स्पैम मेल्स पर्सनली तो बहुत कम है, बहुत कम मतलब यू कांट इवन काउंट, बिल्कुल भी नहीं है स्पैम मेल्स। और फिर भी आपको कोई ऐसा केस मिलता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन से आपको स्पैम मेल आ रहा है, या फिर आपका कोई मेल एक्सपेक्टेड है वो नहीं आ रहा है, तो आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। आप उस डोमेन का मतलब सपोर्ट एट मिथि को कर सकते हैं, हम हमारे साइड से वो कर लेंगे। हेलो हम हमारे एंड से वो व्हाइट लिस्ट नहीं कर सकते क्या, जैसे पाइनएप में कर देते हैं? करंटली ये डिस्कशन चालू है ट्रेन माइक्रो के साथ कि वो अगर एक्सेस देना है तो कैसे देना है। क्योंकि जब पाइनएप हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जब पाइनएप इम्प्लीमेंट हुआ था तभी हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी व्हाइट लिस्ट के बारे में। यस यस, पर्टिकुलर डोमेन मेरे को करना पड़ रहा था, व्हाइट लिस्ट करना पड़ रहा था। अगर सेम अगर इश्यू आता था हम लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सर, अभी करंटली I totally agree with the person who is talking there. I'm saying already we have taken pains to do all these policies and other things on the
Pineapp, Okay. whether this will be continued in Trend Micro No, automatically. no, it I'm will be telling taken care. Yes, sure, sir. Let me answer to that. Actually, first this situation will not be created with Trend Micro. See, these people are giving money back guarantee. They are saying that 99.999% of mails will be blocked with money back guarantee. And as we tested it from our side, we can say that yes, we can do it. And even if we found those things, exceptional cases to blacklist or whitelist something, you don't need to do it from your end. You can raise a query to us and we will do it from our side. I mean, we know what you have to go through when Pineapp arrived. So that's why for you to don't go, you don't need to go through that. You just need to raise query to us and we will do blacklisting and whitelisting from our end. अगर बात अगर वैसे मार्केट वगैरह सब मिल रहा है, वो लोगों को जाता है जो बड़े-बड़े ग्रुप है। सॉरी सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो। अगर मार्केटिंग के जो फिर आते हैं काम में, हाँ, अगर वो जो मॉर्निंग में मेल आता है ना, हाँ, मॉर्निंग का मेल ना, हेलो, डेली मेल रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना सर? हेलो। हाँ, ठीक है, मैं उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो इसमें सिम कार्ड नहीं है कोई? हेलो। तो भी किधर है? हेलो। सर बोलिए बात। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे FAQs आंसर किए गए हुए हैं, ठीक है? अभी मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ कि जो रिपोर्ट आपको मॉर्निंग में आता था वो अभी ट्रेंड माइक्रो में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेंड माइक्रो जैसे मैंने आपको कहा है कि वो गारंटी देता है कि आपको 99.999% स्पैम मेल आएगा ही नहीं। तो यूजुअली ट्रेंड माइक्रो क्या कर रहा है, आपको बता, मतलब आपका जो पेन था वो ट्रैफिक चेक, वो रिपोर्ट चेक करना और कोई ब्लॉक है तो पास करना, उसकी नौबत तो आएगी भी नहीं। और अगर फिर भी ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है जो आपको एक्सपेक्टेड एक वैलिड मेल है और आपको लगता है कि वो मुझे आना था और वो ब्लॉक हो गया, तो एडमिन के पास तो एक्सेस रहेगा ही कि वो क्वेरी में क्वारंटाइन में चेक कर ले और अगर मेल उनको मिल गया तो वो रिलीज कर ले। लेकिन हमने रिपोर्ट्स का अभी चेक किया है, हमारा डिस्कशन चालू है, तो करंटली रिपोर्ट का प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। भारती जी, ओमकार बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे और एक सवाल था कि अगर ऐसे कोई स्पैम मेल्स वगैरह आते हैं, आप बोल रहे हो कि वैसे कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, क्वारंटाइन में जाके चेक करना है, ठीक है? तो अगर सेम टाइम अगर कोई सेम डोमेन में रहेगा, अगर मतलब abc@miti.com से अगर abc@miti.com कोई वापस एक सेंड हुआ है, ठीक है, तो वो लिस्ट हम लोग पाइनएप में चेक नहीं कर पाते थे, तो क्या इसमें वैसे कुछ होगा चेक करने के लिए? हेलो। हाँ सर, एक्चुअली आपने जो अभी मुझे मेल डिस्क्राइब किया था वो एक्चुअली है स्पूफ मेल। वहां पे सेंडर क्या करता है कि स्पैमर आपका ही आईडी एज अ सेंडर आईडी में डाल देता है और वो सेंड करता है। तो पाइनएप में वो एक फॉल्ट था कि वो पूरा सेंडर नेम नहीं चेक करता था, सिर्फ एनवेलप सेंडर चेक करता था, और क्योंकि वो पाइनएप में डिफरेंट दिखता था इसलिए वो पास होता था। लेकिन ट्रेंड माइक्रो में स्पूफ प्रोटेक्शन भी है, तो वो इंटरनली उस मेल को ब्लॉक कर देता है, वो मेल आएगा नहीं सर, डोमेन को डिलीवर नहीं होगा ऐसे मेल्स। है ना, इसके लॉग्स तुम लोग चेक कर सकते हैं कि नहीं कि वो मेल सेंड हुआ है? मैंने आपको दिखाया था, क्वारंटाइन में जाना होगा, हमें क्वेरी करना होगा, और आपको 30 दिन के लॉग्स स्टोर्ड है, लेकिन आपको एट अ टाइम 7 डेज के लॉग्स देख पाएंगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी यहाँ पर मुझे लोकल मेल्स, अभी यहाँ पर 8 जून से लॉग अवेलेबल है, लेकिन अगर मुझे लॉग देखने हैं तो मैं 1 जुलाई 7 जुलाई चेक कर पाऊंगा उस पर्टिकुलर मेल एंट्री के लिए। ओके, एंड सेम टाइम हम लोग सेंड वाले भी मेल देख सकते हैं या नहीं सर? एक्चुअली मेल हम लोग सेंड कर रहे हैं उसके लॉग्स नहीं, एक्चुअली सर में वो भी फैसिलिटी हमारा इनकमिंग मेल फ्लो मॉनिटर करता है और उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो हम सेंडिंग के लिए इस पे नहीं देख पाएंगे। सेंडिंग हमारा अलग तरीके से रूट होता है।
नहीं, क्योंकि पाइनएप में भी यही था कि सेंड का ऑप्शन जो था वहां से अगर मेल सेंड हुआ है नहीं हुआ है कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, सेंडिंग का ना एक्चुअली उसका भी डिस्कशन चालू है सर। शायद वो नेक्स्ट फेज में आ जाएगा, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ बताना मुश्किल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय डीएच इंक्लूडेड है कि नहीं इसमें? सॉरी सर, डीएच इंक्लूडेड है की नाही? डीएचए, येस सर, डीएचए इन्क्लुडेड आहे, आम्ही कन्फर्म केलंय आणि डीएचए इन्क्लुडेड आहे याच्यामध्ये. बुकिंग पण आहे? सॉरी सर, मी ऐकू शकत नाहीये. हॅलो, बुकिंग पण आहे का? हॅलो, हॅलो. बुकिंग पण आहे? नाही सर, तुम्ही चॅटवर टाइप करू शकता, मला मी ऐकू नाही शकत तुम्हाला. नहीं लेकिन मंगाना तो पड़ेगा ना दूध. हॅलो, जितना है वो हॅलो. येस, स्पूफिंग तर स्पूफ प्रोटेक्शन आहे याच्यामध्ये, आणि आम्ही टेस्ट केले तर आम्हाला एक पर्टिक्युलर मेल एंट्री म्हणजे आमच्याकडनं कन्फर्म झालंय. सपोर्टच्या एका आयडीला स्पूफ मेल येणार होता आणि तो एक्सपेक्टेड होता आणि तो ब्लॉक केला ट्रेंड मायक्रोने. आता समजा आपल्याला एक्सएस वगैरे फाईल ब्लॉक झाल्या असतील, कारण स्पॅम वेगवेगळे आहेत ना, डॅश डॉट, कॅपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क वगैरे काय असेल तरी स्पॅम असतो ना. येस येस तर नुसत्या अटॅचमेंट मुळे स्पॅम होतं असं नाहीये ना. येस 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 म्हणजे सॉरी एक सेकंड. येस येस रितेश सर, आय स्पीक इन हिंदी. आय एम सॉरी, आय स्पीक इन हिंदी. हाँ किरण सर, हेलो. स्पैम के जो रूल्स है वो केवल अटैचमेंट के साथ लिंक नहीं है ना, सब्जेक्ट लाइन पे भी लिंक है ना, क्या नहीं है? मतलब स्पैम मेल सिर्फ अटैचमेंट में, वायरस मेल सिर्फ अटैचमेंट में नहीं आता है, ऐसा कहना चाहते हो ना? हेलो, नहीं, देखो स्पैम यानी क्या है कि सब्जेक्ट लाइन में भी डैश डॉट, क्वेश्चन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर ऐसा कुछ भी है, या फिर अटैचमेंट इंक्लूड है तो स्पैम है. हाँ, तो those mail which are blocked due to subject mangling or something, अच्छा सब्जेक्ट में स्पैम, अच्छा ओके, स्पैमिंग वाला सब्जेक्ट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा क्या, ऐसा क्वेरी है आपका? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा है ऑर्डर और इट इज वैलिड मेल, तो ये सिंगल लाइनर से वर्ड होने की वजह से वो स्पैम चला गया सपोज, तो उसको कैसे रिलीज करेंगे? हाँ, उसका मुझे मालूम नहीं है. हाँ, वो हम रिलीज कर सकते हैं. आपको अगर पता नहीं है, हेलो 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 हेलो, ठीक है मैं आपको बताता हूँ. अगर वो स्पैम मेल की वजह से ब्लॉक हुआ है तो कैसे रिलीज करना है. बेसिकली अगर हमें पता नहीं है कि कौन से सेंटर से आने वाला था, तो हम लॉग में जाके क्वेरी कर सकते हैं. मेल ट्रैकिंग में आपको रिसिपिएंट का नाम देना है, पीरियड देना है, सर्च करना है, तो आपको नहीं मालूम है रोज के लॉग डिटेल्स में आ जाएगा कि हाँ, लॉग डिटेल्स में आ जाएगा आपको कि क्यों ब्लॉक हुआ है. तो अगर वहां पे स्पैम और क्वारंटाइन आता है तो फिर आपको क्वारंटाइन में जाना है, उस पर्टिकुलर मेल एंट्री को सर्च करना है और आपके पास वहां पे ऑप्शन होगा डिलीवर. मैं आपको दिखा सकता हूँ वो कैसे करते हैं. अभी यहाँ पे मैंने पीरियड दे दिया, मैंने एक आईडी डाल दिया. के लिए अलग अलग क्यों करना पड़ेगा, चाहिए ना. पुराना था मालूम है, उस टाइप का वो है ना ये. देखिए अभी यहाँ पे आपको स्पैम दिख रहा है. हेलो, अभी आपको स्पैम दिख रहा है. अभी यहाँ पे जंक मेल जैसा आपने कहा 2 वर्डेड सब्जेक्ट है और कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ टिकट नंबर का रिप्लाई है वगैरह ऐसा कुछ है. तो ये स्पैम एज डिटेक्टेड हुए हैं, तो आप उनको ऐसा क्लिक करके यहाँ पे डिलीवर ऑप्शन है, नॉट स्पैम ऐसा बोल सकते हैं और उसको हम रिलीज कर सकते हैं. नहीं मुझे वो क्वेश्चन नहीं है, रिलीज कर सकते हैं ओके है, पर इसमें वायरस है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? वायरस सही है. तो आप लॉग्स में जब उसको ट्रेस करते हैं तो आपको स्टेटस आ जाएगा कि स्पैम है या वायरस है या क्यों ब्लॉक्ड है, सब आ जाएगा.
अभी जैसा मैंने आपको क्वारंटाइन तो में मैं दिखाया इतना था, देखिए अभी मैंने आपको क्वारंटाइन में एक मेल रिलीज करने के लिए सारा स्क्रीन देखना पड़ेगा पहले। पता है उसमें कौन सा नहीं है। आपको मेल सर्च नहीं करना है, आपको रिसिपिएंट सर्च करना है, या फिर आप पूरा डोमेन का भी देख सकते हैं। देखिए मार्किस बराबर है। हाँ हाँ बताइए। देखिए अभी मैं पूरा यहाँ पे डोमेन का देख रहा हूँ star@methi.com। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शंस कर देता हूँ, मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स दिखाइए बोल के। हाँ तो यहाँ पे आपको करेक्ट, आ अभी जाएगा बराबर है। पर्टिकुलर, और यहाँ पे टाइप आ जाएगा कि स्पैम है या वायरस है या कुछ और है। हाँ ओके, ये यहाँ पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा। हाँ ठीक है सर? हाँ बराबर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं वो ठीक है तुम्हारा, ये स्पैम है वो बराबर है। पर ये क्यों स्पैम हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा? ओके ओके ओके, प्लीज होल्ड ऑन। ये वोट दो। बाउंसला पण स्पॅम झालंय. हेलो हेलो स्पॅम झालंय ना. हेलो बाउंसला पण स्पॅम आहे. हेलो हाँ बोला। हाँ सर, मैं आपकी हाँ, क्वेरी बोलो। नोट डाउन कर ले रहा हूँ कि ये अभी मेल स्पैम हुआ है तो क्यों है, उसका रीजन ना। ठीक है, मैं ये क्वेरी नोट डाउन कर लेता हूँ। क्योंकि हमको रिलीज करना है। हाँ, नहीं और रिलीज करना है जो बोल, तो उसके पहले वो क्लीन होगा कि नहीं होगा, तो वो स्पैम है या नहीं नहीं नहीं, स्पैम अगर है, स्पैम है, वायरस है, तो मेल क्लीन होके डिलीवर नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो एंटर ही नहीं होगा डोमेन पे मेल। नहीं सपोज सॉरी मैंने सुना होगा नहीं, कि नहीं होगा, सॉरी मैंने सुना नहीं, सॉरी सर। ठीक नहीं होगा। अगर उसको डिलीवर कर रहे हैं तो वो टाइम पे भी वो क्लीन होके डिलीवर होगा या ऐसे ही डिलीवर होगा? मैं डिलीवर होगा ही नहीं सर। एक्चुअली अगर स्पैम है और वायरस है तो ट्रेड माइक्रो उसको अंदर आने ही नहीं देगा, वो ट्रेड माइक्रो पे ही उसको ब्लॉक कर देगा, ट्रेड माइक्रो से पास ही नहीं होगा। वो पूछना चाहते हैं कि अगर ये अभी मेल यहाँ पे ब्लॉक हुआ है एज स्पैम करके, राइट, अगर हम लोग उसको रिलीज कर रहे हैं, हाँ। कि उसको सिलेक्ट करके डिलीवर के लिए कर रहे हैं, नॉट अ स्पैम, भी हम लोग को कैसे पता कि उसमें स्पैम है नहीं? अगर उसमें सच में स्पैम है तो वो क्लीन करके आएगा या ऐसे ही चला जाएगा? नहीं नहीं, स्पैम मेल नहीं नहीं सर, ठीक है. दिस मेल इज ब्लॉक एज स्पैम, राइट? हेलो हेलो हाँ सर, एक्चुअली ये स्पैम मेल्स में ऐसा कुछ कंटेंट नहीं होता है जिसकी वजह से आपके पीसी को कोई हार्म हो। स्पैम मेल बेसिकली कोई एडवर्टाइज होता है या फिर कोई आपको मतलब फूल बनाने के लिए ऐसे कोई मेल भेजा जाता है आस्किंग योर अकाउंट नंबर एंड एवरीथिंग। तो स्पैम मेल्स सिर्फ ब्लॉक होते हैं, उनको क्लीन नहीं होता। ये बेसिकली उसमें कंटेंट, पिक्चर्स और लिंक्स होते हैं, तो वो जब डिलीवर करोगे तो सीधा डिलीवर हो जाएगा, उसमें क्लीन कुछ नहीं होगा। और वायरस मेल है, वायरस है तो आप वायरस करोगे, वायरस पास ही नहीं होगा ट्रेंड माइक्रो से। स्पैम मेल्स ऐसे होता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस अशोक लोग, ये जो आपका जो डायरेक्शन में इनकमिंग है, हाँ, और क्या है डायरेक्शन में? इनकमिंग है, और ट्रेंड माइक्रो आउटगोइंग का भी फीचर रखता है, लेकिन हमने methi.com के लिए अभी आउटगोइंग एनेबल नहीं किया है। ओके, तो क्योंकि आउटगोइंग में जनरली वो इशू आता है ना कि किसी ने सेंड किया और उसके साथ में कुछ वायरस इन्फेक्टेड सिस्टम रहा तो ब्लॉक होता था रिसीव। नहीं तो अभी अपने इसमें आउटगोइंग नहीं है ना? अभी हमारा आउटगोइंग कैसे होता है, मिथि का आउटगोइंग रिले सर्वर है खुद का, तो वहां से आउटगोइंग मेल्स जाते हैं, या फिर कोई और ऑप्शन आपने डोमेन वाइज लिए हो तो वहां से जाते हैं। अभी ट्रेंड माइक्रो से हमारी आउटगोइंग ये है, डीलिंग है, तो आउटगोइंग वहां से नहीं होती है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट फेज में हमारी आउटगोइंग ट्रेंड माइक्रो से होगी। ओके, और मुझे पूछना था वैसे, अगर एक महीने के पहले का अगर लॉग देखना है हमको, एक महीने का पहले का अगर इनकेस ऑफ कुछ मिस हो जाता है हमको, अगर तो इसका कहीं हिस्ट्री रहती है क्या? नहीं सर, ट्रेंड वगैरह रहता कुछ है कि इसका?
कि आपको मेल करे तो आप निकाल के दे दो हमको। नहीं सॉरी सर, ट्रेंड माइक्रो हेलो 30 दिन के पहले के लॉग्स रखता ही नहीं है। आपको 30 दिनों के ही लॉग्स मिलेंगे ट्रेंड माइक्रो में। नहीं, मगर अगर मेरा कोई 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 इम्पोर्टेंट मेल था जो लास्ट मैंने समझ लो 2 महीने हो गए, मुझे पता चला कि मुझे तो क्वारंटाइन हो गया था, किसी ने सेंड किया था, मुझे चाहिए अब वो, तो उस केस में कहीं इनके पास में इनका सर्वर है कोई आर्काइवल का, कि वो लोग रिकॉर्ड रखते होंगे उसका कहीं? नहीं फिर वो, सॉरी सर, तो मेल कहीं नहीं मिलेगा बाद में। मुझे क्वेरी एक बार कंफर्म कीजिए ना प्लीज। जैसे कि 1 महीने के पहले का कोई बहुत जरूरी मेल था, इम्पोर्टेंट मेल था, मैंने जैसे देख लिया था कि वो स्पैम में है, मगर मैंने छोड़ दिया कि वो स्पैम है करके। हाँ हाँ हाँ। मुझे किसी यूजर ने बताया कि यार वो मेल तो मुझे चाहिए था अभी। तो आपका कहना है कि 1 महीने के ऊपर हम लोग हिस्ट्री रख नहीं सकते? नहीं, तो इस केस में क्या मैं आपको मेल करके या आप कुछ अदर वे से क्या हम उस मेल को रिकवर कर सकते हैं? कहीं वो मेल स्टोर रहता है या बस परमानेंटली रिमूव हो जाता है सब जगह से? ये जितने भी क्वारंटाइन हो रहे हैं आपके, कहीं इसका स्टोरेज है या परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे? नहीं नहीं, एक्चुअली सर कैसा है, ट्रेंड माइक्रो का जो सर्वर है वो हमारे यहाँ पे नहीं, वो AWS पे होस्टेड है। और ट्रेंड माइक्रो क्या करता है, सिर्फ 30 दिनों तक ही मेल का रिकॉर्ड रखता है। एक सैस टाइप तो थिंग है ट्रेंड उसके माइक्रो। बाद में हाँ, तो 30 दिन के नहीं, तो यार पहले का मुझे अगर कोई बताइए मेल होगा जो आपने रिलीज नहीं किया और वो ब्लॉक्ड होगा, और उसको 30 दिन कंप्लीट हो गए, तो फिर वो क्वेरी भी नहीं होगा, रिलीज भी नहीं होगा। नहीं नहीं, मगर ये तो मीठी आपको आपको देखना पड़ेगा ना कहीं तो स्टोरेज रखना पड़ेगा ना कुछ दिनों के लिए, और ट्रेंड माइक्रो नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं आपके पास तो वो फैसिलिटी होगी यार, नहीं नहीं कि सर, हमारे मेल कहीं पर मिले हम। एक्चुअली ऐसा नहीं है सर, क्योंकि कैसा होता है कि हमारा मेल आता है ट्रेंड माइक्रो से मिथि पे, जो रिमोट डोमेन ने भेजा है मेल वो आता है ट्रेंड माइक्रो से, तो ट्रेंड माइक्रो से पास होता है। तो अगर वहां पे कहीं पे ब्लॉक है मेल और उसको 30 दिन हो गए और हमने रिलीज नहीं किया, तो वो एंट्री निकल जाती है लॉक्स से और फिर वो हमें मेल नहीं मिल सकता। तो पाइनएप में तो ऐसा नहीं होता था, नहीं पाइनएप में एटलीस्ट हम लोग मेल देख पाते थे, हमारा रिलीज कर सकते थे। नहीं 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 सर, मैंने इसका कहीं कॉपी नहीं मिला। पाइनएप में मैक्सिमम 15 डेज सर, 15 डेज के पहले का हम लॉग भी नहीं देख सकते थे उसका। हाँ मगर उसका डेली जो ट्रैफिक आता था एटलीस्ट पता तो चलता था कि यार कि हमारा कोई मेल आया है। अभी तो हमको रोज खोल के बैठना पड़ेगा इसको, है ना? नहीं, एक्चुअली सर आप टेस्ट कर सकते हैं आपके साइड पे, जितना हमने टेस्ट किया है। No, और नहीं तो ट्रेंड माइक्रो बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका कोई जैसे रिपोर्ट, ओके, इसका कोई रिपोर्ट का कोई मेल नहीं आ सकता क्या? वो अभी डिस्कशन चालू है सर। क्वारंटाइन रिपोर्ट हमने उनको एक क्वेरी की है, हम उनके आंसर का वेट कर रहे हैं कि ऐसे कोई प्रोविजन हम ले सकते हैं क्या। ये मंडे से चालू होने वाला है ना? हाँ नहीं, कल गो लाइव होगा सर, कल से ही चालू हो जाएगा। अगर मैं सेफ से अगर मैं व्हाइट लिस्ट डोमेन का लिस्ट देता हूँ, तो हाँ आप उसको व्हाइट लिस्ट करके रखोगे क्या? क्योंकि मेरे को मंडे में यस, मैं आपको व्हाइट लिस्ट करके देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक मतलब सजेशन देता हूँ कि आप मॉनिटर कीजिए, एक 2-3 दिन मॉनिटर कीजिए, देखिए आपको स्पैम मेल्स आ रहे हैं क्या। पाइनएप जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। यस इसके लिए मैं सेफ से अगर आपको व्हाइट लिस्ट डोमेन देता हूँ, मेरे पास लिस्ट है। नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं बोलता हूँ सर एक दिन आप कीजिए, क्योंकि पाइनएप अलग चीज थी और ट्रेंड माइक्रो बहुत बड़ा ब्रांड है, और वो जब मनी बैक गारंटी दे रहा है 99.99, मनी बैक गारंटी मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप एक दिन मॉनिटर कीजिए, देखिए स्पैम मेल आ रहे हैं क्या, आपके वैलिड मेल्स ब्लॉक हो रहे हैं क्या, आप टेस्ट कीजिए, और अगर टेस्ट में फेल हो रहा है तो आप भेज दीजिए, आप जैसे ही भेज देंगे हम यहाँ से काम चालू कर देंगे, नो प्रॉब्लम। भारतीश यस सर। माझं मॅन्युफॅक्चरिंग फर्म आहे आणि बरेच कस्टमर्स आम्हाला फोटो पाठवत असतात प्रॉडक्ट मध्ये काही डिफेक्ट वगैरे असले तर तुम्ही जेपीजी वगैरे सगळं जर ब्लॉक केलं तर मग कसं करणार आम्ही? सॉरी, अभय सर इज दिस, हेलो नागेश कुलकर्णी। नागेश सर, ओके हेलो हाँ। सर, अरे, हम हिंदी में बात करते हैं, manufacturing बाकी कस्टमर्स का रिक्वेस्ट आ रहा है, उनको क्वेरी समझ में नहीं आ रही है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट डिफेक्ट्स वगैरह वगैरह होते हैं तो फोटो भेजते हैं कस्टमर। ओके, तो आपने अगर जेपीजी टीआरएफ सब ब्लॉक कर दिया नहीं तो नहीं, कैसे करेंगे फिर? ब्लॉक नहीं किया है सर, ब्लॉक नहीं किया है वो, अभी ये ट्रेंड माइक्रो का चल रहा है ना सर, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने वो ब्लॉक नहीं किया है जेपीजी वगैरह,
हमने कुछ अलग ब्लॉक किया है, आप सपोर्ट में कॉल कीजिए, वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा। अच्छा हाँ, वो ऐसा ब्लॉक नहीं किया है, और वो और वो हाँ। प्रॉब्लम आपके सेफ्टी के लिए था अभी, लेकिन ट्रेंड माइक्रो आने वाला है, तो ट्रेंड माइक्रो खुद ही रैंसमवेयर डिटेक्ट करता है, स्टॉप करता है, तो फिर वो ब्लॉक आज मतलब आज के दिन है, कल जब ट्रेंड माइक्रो गो लाइव हो जाएगा तब सिर्फ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब मैं सपोज कोई एडवर्टाइजिंग मेरे फ्लिपकार्ट से लॉग इन किया है और मैं चाहता हूँ वो ना आए, तो वो भी डिलीवर होगा ट्रेंड माइक्रो से। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं सर। हेलो, जैसे शादी का प्रपोजल है, किसी ने मैट्रिमोनियल साइट पे लॉग इन करके रखा है, ओके ओके, कोई हाँ फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करके रखा है और मैं चाहता हूँ कि वैसे तो वो भी मेल मिलेंगे, क्लियर है इसलिए। हाँ, अगर नहीं, अच्छा वो इंफॉर्मेटिव मेल्स वगैरह आपको किसी ने इन्विटेशन वगैरह भेजा है, वही ना? हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो वो मेल ब्लॉक नहीं होंगे अगर वो वैलिड मेल्स है इन्विटेशन के, तो वो ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन उसमें अगर ऐसे फेक मेल्स होंगे स्पैम कंटेंट वाले, तो फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपने ऐसा नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, शादी के लिए भी कोई ऑफिस में यार, मुझे बताओ। सॉरी मैं सुन नहीं पा इनके रहा हूँ। लाइफ में शादी के लिए एक्चुअली मैं कॉल करने की सोचा अगर वो हेलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर, आप टाइप कर सकते हैं क्या? मैं चैट में पढ़ के आपको आंसर देता हूँ। कब अरे भाई ये सब प्रपोजल वाले में ले आ रहे हैं शादी वगैरह, ये हमने बड़ी मेहनत करके सब ढूंढ के जॉब लेते फाइनेंस पे, अभी बोल रहे हो तो अगर मिलेंगे तो फायदा क्या होगा, हमारा मेल बॉक्स तो वैसे ही कर जाएगा ना। नहीं, वो ब्लॉक नहीं होंगे सर, ठीक है, आप एक दिन मॉनिटर कीजिए, देखिए वैसे मेल ब्लॉक हो रहे हैं क्या। जाएंगे दूसरे दिन से आ रहे सारे मेल करके। नहीं, मैं बोल रहा हूँ गो लाइव कल है, कल ट्रेंड माइक्रो जब एक्टिव हो जाएगा, आप मॉनिटर कीजिए एक दिन, वैसे मेल ब्लॉक हो रहे क्या देखिए, अगर फिर वैसे मेल ब्लॉक हो रहे हैं तो आपके पास पाइनएप की जो लिस्ट है, जो आपने व्हाइट लिस्टेड की है, हेलो, तो फिर आप वो हमें मेल कर दीजिए, हम यहाँ पे भी उसको व्हाइट लिस्ट कर देते हैं, अगर आपको मेल नहीं आ रहे हैं तो। मुझे सॉरी सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन ऐड किया है जो सब देख के लॉग वगैरह। सो संडे मॉर्निंग आपको पैसे देता हूँ 46,000 कितना 9643 सर एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, और चाहता हूँ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट पे डालिए, या फिर एक्चुअली सर सॉरी आई एम रियली सॉरी सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज कट रही है। मैं बताता हूँ सबको मैं आगे ज्यादा बोल हेलो 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 मार्केट यस सर, इसका कंडीशन कभी तो मिलेगा और इसका रिजल्ट सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्रेडेंशियल कभी मिलेंगे हम लोग? हाँ, क्रेडेंशियल्स कैसा होगा सर, अभी हम डोमेन्स ऐड कर रहे हैं एक्चुअली, ट्रेंड माइक्रो पे डोमेन्स ऐड करेंगे, फिर हम आपके एडमिन है, ठीक है, हमने उसकी एक लिस्ट निकाली है, आपको एडमिन अकाउंट बनाएंगे, और जब उनके अकाउंट्स बनेंगे तो आपको इनबॉक्स में मेल आएगा। मैंने पहले मेल्स था, అయితే కనిపించినాయి अभी और కదా एक అంటే बार వెబ్ आपको మెయిల్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు తనకు చాలా మెయిల్స్ వచ్చి కనిపించినాయి मेल होगा, जैसा ये आपको मेल आएगा, और जैसे ही मेल आएगा చూడండి సెండ్ చేసిన టెస్ట్ और आपका यूजरनेम रहेगा, आप इसको ये लिंक आपका डैशबोर्ड को ले जाएगा ट्रेंड माइक्रो के, और అంటే సేమ్ ये आप, క్రెడెన్షియల్స్ మీరు మీ సిస్టम లో ये जो पासवर्ड दिखा रहा है, पासवर्ड आपको मिलेगा, वो पासवर्ड डाल के आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके ये कल तक हो जाएगा क्या? हाँ सर, ये एक सेकंड, ये कल तक मिल जाएगा सर। हाँ, I think we have given two queries through chatting. Can you please concentrate? సెండింగ్ వెళ్తుంది అన్నారు కదా రిసీవింగ్ రావట్లేదు అన్నారు కదా. हेलो,
हार्दिक और पास में कहाँ देखने का है, पास में कहाँ देखने का है डोमेन पे? सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अरे पास मेल कहाँ देखेंगे, मेल चैटिंग पे डाल। ओके ओके, पास्ट मेल्स, पास्ट मेल्स, ओके ओके। లాస్ట్ మెయిల్ వచ్చింది గో లైవ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దాని గురించి మిత్రులది. मेल ट्रैकिंग, लॉग्स में जाना है, मेल ट्रैकिंग में जाना है, आपका डोमेन *@ जो भी होगा mithi.com, ठीक है, सर्च करूंगा। ठीक है, ब्लॉक्ड मेल यहाँ पे दिखेंगे, ब्लॉक ट्रैफिक, और उसके बाजू में एक्सेप्टेड ट्रैफिक। यहाँ पे आपको उनका रीजन भी दिखेगा। जो अभी एक्सेप्टेड ट्रैफिक में आपको मतलब जो ट्रेंड माइक्रो ने एक्सेप्ट किए हैं मेल, जो रिजेक्ट नहीं किए हैं वो मेल्स दिखेंगे। उसमें आपको एक्शन में जैसा मेरा कर्सर दिख रहा है, डिलीवर्ड, जो आपके डोमेन को डिलीवर्ड मतलब पास हो गए हैं ट्रेंड माइक्रो से, और जो क्वारंटाइंड है वो ट्रेंड माइक्रो ने रोक के रखे हैं ड्यू टू स्पैम और वायरस, कुछ भी हो सकता है। ओके सर, That is coming back to what Nagin asked. All these days we have taken pains to add all the policies of smart campaign and सर आपकी आवाज कर how about blackmail? హలో విశ్వనాథ్ జస్ట్ పక్కకు పెట్టి పెట్టేసిన కదా ల్యాప్టాప్. हेलो, అది అంటే వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉంది. ఒకసారి यस सर ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కదా, వర్కింగ్ ల్యాప్టాప్. हेलो, यस सर, गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। ఒకసారి చూసి అది అకౌంట్ లో ఉందా, అది మన అసెట్ దాంట్లో. सॉरी मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा सर? ఇన్వెంటరీలో ఒకసారి చూడదు ఏ స్టేటస్ లో ఉంది దాంట్లో. బయటికి చూడమని చెప్పి ఒకసారి ల్యాప్టాప్ స్టేటస్ చూసి చెప్పిన. ओके सो आपको जो भी क्वेश्चंस हो अभी ट्रेनिंग के बारे में, इस ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर दिया गया है, बाद में इसकी लिंक भी अवेलेबल कर दी जाएगी, तो आप इस ट्रेनिंग सेशन को बाद में देख सकोगे डिटेल में। अभी आपको इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में जो भी क्वेश्चन, हाँ सर, आप सपोर्ट में मेल रेज कर सकते हैं, मैं उसकी क्वेरीज को आपको आंसर कर दूंगा। हेलो, ट्रेनिंग है। हेलो, हाँ यस सर, हेलो, अभय मुंशी फ्रॉम वेलकम। हाँ यस सर, Thank you. Can I go to Dashboard? Can I go to Dashboard? yes Yeah, on here, out here we are saying data collected within last 2 hours may not be displayed. yes sir, So if you show the data which is of 120 minutes old, sorry, what will you do? last 2 hours. Hold on. Let me confirm that. So please give me a minute. Data collected in last 2 hours. हेलो, Then it is useless. अभय सर, बोलिए। हाँ, yes sir, I confirm. The logs will be displayed. The latest logs will also be displayed. Only these graphs, these charts, and the statistics, they may not be displayed. It's not that they won't be displayed at all. There is a possibility that they cannot be displayed for latest 2 hours. Chart is fine. Chart you might be look at also the chart is weekly only.
You're not showing the current chart. You're showing the week of 6. అది వచ్చిందండి మీరు అంటే రవీందర్ రెడ్డి నుండి And this data collected within last 2 hours, this is the warning. You will see this warning in logs also. But, as I confirmed, Can others put their microphone? Hello, can others put the microphone on mute, please? Requesting others to put the microphone on mute, please. sorry sir, your voice is not audible, sir. specific set. I'm trying to ask others to put their microphones on mute so we can listen properly. So can you please chat Top 3 incoming mail.magnavis.com ఇచ్చారా? Yeah, Matt will. So not going to show me the data, live data which is logged. Okay. Right. Fine. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ ఇస్తున్నారు కదా, యూజర్ నేమ్ @magnavis.com అండ్ కింద ఒకటి చెక్ బాక్స్ చేస్తున్నారా, రిక్వైర్ లాగాన్ యూజింగ్ సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ SPA, అదొకటి ఎనేబుల్ చేయండి. యూజ్ చేస్తున్నట్టుంది. రిక్వైర్ లాగాన్ యూజింగ్ సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ SPA. మోర్ సెట్టింగ్స్ లో ఇంకా వేరే भारतीश, Yes sir. माय आउटगोइंग सर्वर SMTP भारतीश मुझे बताओ, अभी ये आप बोल रहे हो कि डेटा कलेक्शन विद इन द लास्ट 2 आवर्स में नॉट बी डिस्प्लेड. अगर 2 घंटे के बीच में का हम लोग को चेक करना है या फिर रिलीज करना है तो फिर कैसे करेंगे? नहीं सर, अभी मैं आपको बताता हूँ. लॉग्स जो है आपके, वो लॉग्स फ्रेश लॉग्स भी दिखेंगे. मैसेज वहाँ पे भी आएगा, लेकिन मैंने कंफर्म कर लिया मैसेज आएगा, लेकिन फ्रेश लॉग्स, लेटेस्ट लॉग दिखेंगे. वो जो पाई चार्ट्स सर्वर रिक्वायर्स एन एन्क्रिप्शन कनेक्शन SSL అనేది वो हमने top 3 के कर लिया वो नहीं, इनका वॉइस क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, मतलब या फिर ऐसे माइक्रोफोन ऑन रख के बैठे हैं, उनका वॉइस क्यों आ रहा है कंटिन्यूस? बाय डिफॉल्ट एनेबल है सब చూడండి. नहीं आउटगोइंग दांట్లో 587 प्लस लॉग्स आपके लेटेस्ट लॉग्स भी दिखेंगे. सिर्फ जो पाई चार्ट्स है वो मे बी, और वो ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं दिखेंगे. ऐसी कभी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि वो लेटेस्ट लॉग्स के लिए चार्ट्स अवेलेबल नहीं है. ఫస్ట్ ఒకటి డిఫరెన్స్ అనుకున్నా, రిక్వైర్ లాగాన్ యూజింగ్ సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ SPA ఒకటి. మోర్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే అడ్వాన్స్డ్ లో ది సర్వర్ రిక్వైర్స్ ब्रजेश में समझ नहीं पाया एक्चुअली, बीच में इसका वॉइस आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. आपको इसके बारे में मैं चैट पे आंसर दे दूं? हाँ चलिए. ఇన్కమింగ్ సర్వర్ పాప్ 3 కింద ఉంది టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఒకటి చెక్ బాక్స్. इनकमिंग सर्वर 43995. ये उनका पर्सनल काम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ऑन रख के माइक ऑन रख के कर रहे हैं, उनको एक्चुअली सर जो यूजर्स मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है तो उनका भी, उनके भी स्पीकर्स ऑन है. इनकमिंग सर्वर लेने లేదా అక్కడ అంటే మీ వెర్షన్ తన వెర్షన్ సేమే అనుకుంటా. డిస్ప్లే అయితే మరి మన దాంట్లో రెండిట్లలో ఉండాలి కదా. నాది 2010 Hello. Sir, can you disconnect them? आते जाते इनको म्यूट कर लो. Okay. Okay sir. Now if you have any queries you can call in support or you can raise a mail. I will answer it from there. requires login using secure password authentication ఒకటి can but అది ఎట్లా Hello. Yes sir, I request అకౌంట్ దగ్గర కంప్లీట్ ఇచ్చారు కదా. Hello. Yes sir, I request you all to please mention your current queries and I will reply. What about the blank on them. మరి ఇన్కమింగ్ సర్వర్ ఎక్కడ Thank you for attending. And this session is recorded and it will be available. Its link will be available. It will be mailed to you all. So you can.